Hello my dear student, today I am going to discuss the question on the basis of application of Gauss theorem. This is very important derivation in terms of CBSE board examination. Many times the question came from this section. Okay. In this video I am going to discuss when a charge is distributed throughout the sheet of charge. Suppose this is a sheet of charge and charge is distributed throughout the sheet. Why it is called sheet? Because the thickness is very less and the length and breadth is high compared to the thickness of this sheet, and charge is uniformly distributed throughout this sheet. So what is the electric field due to this sheet of charge at any distance r? This is the r distance and you have to find the electric field due to this sheet of charge at a distance r. So how to find? We have to use Gauss theorem. Okay, with the application of Gauss theorem, this is uniformly distribution of charge. With the help of this Gauss theorem, we can easily find the electric field due to this sheet of charge. So here you can see, consider a thin infinite plane sheet of charge. This is thin infinite plane sheet of charge having surface charge density is sigma. Surface charge density, why I am taking? Because the charge is distributed throughout the area. This is planar area, it is having very less thickness, that's why it is called sheet. Okay, now we have to find electric field at a point P. Suppose this is a sheet having charge, so we know we have to find electric field at this point P, and suppose we know that the charge is distributed throughout this sheet, so electric field will exist in this section also and in this section also. In both sections electric field will exist. So at a distance r we can find electric field. How to find electric field? We have to make a Gaussian surface. A Gaussian why I have taken Gaussian surface as a Gaussian cylinder? GC means Gaussian cylinder, because suppose this is the point P where we have to find the electric field. Okay, now what to do? Okay, suppose this is a sheet of charge and we have to find electric field at this distance. So I will make one Gaussian cylinder or Gaussian surface, because at this point we can make from the center of the throughout this charge we can make a Gaussian cylinder, and we know Gaussian surface is made in such a way that electric field is constant throughout the Gaussian surface. Means here electric field is same, here electric field is same, everywhere through this Gaussian surface electric field is same. Now this, due to this charge, okay, due to this sheet of charge, electric field will exist in both direction, that is in this direction and this direction. So at distance r we have to find the electric field, that's why we have to make a Gaussian cylinder. This is Gaussian cylinder. Why I am making Gaussian cylinder? Because at this point if we make a Gaussian cylinder, at this point electric field is constant at every point. Okay, now what to do? Very simple. We know that due to this plus sigma charge, the electric field is outward, electric field direction is outward. Okay, so we have to find electric field at distance r, either this side or this side. So what we have to take? We know that the surface charge density of this sheet is sigma, that's why surface charge density is given by charge per unit area. Okay, so Q is how much? Q is equal to sigma into A. Sigma is what? Surface charge density, that is constant, charge per unit area term. Okay, so this term is having some charge. So how to find? Suppose the area of this sheet, this section area is having area A, and the surface charge density everywhere is same. So if you multiply surface charge density into area, we will get the charge enclosed in this area. इस पार्ट में कितना, इस एरिया में कितना चार्ज होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. हमने ऐसा सिलेंडर क्यों सरफेस किया? हम सर्कुलर सेक्शन कंसिडर करते हैं. ठीक है, ये ऐसा सर्कुलर करते हैं, ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा शेप. ठीक है, ये इस तरह का शेप भी ऐसे करके कंसिडर करके हम बना सकते थे. इस शेप लेना पड़ता, मतलब क्यूबोइडल शेप भी ले सकते थे, बट वी आर प्रिफरिंग गॉसियन सिलेंडर, क्योंकि और ये सेंटर से हम ऐसा मार्क करते हैं कि सेंटर से मैक्सिमम पार्ट कवर करेगा. तो इस पार्ट के अंदर जितनी चार्जेस आती है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा, वही हम इस फॉर्मूला से डिराइव करेंगे कि अगर शीट में चार्ज है
तो हम एक गॉसियन सिलेंडर बनाएंगे, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा वो हम निकालेंगे। ठीक है, सो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स देखो क्या होता है, फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो हमने गॉसियन सरफेस जो बनाया है, इस चार्ज के कारण यहाँ पर जो गॉसियन सिलेंडर ऐसे बनाया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर बाहर निकल रही है, और ये जो गॉसियन सरफेस है ये पार्ट, इसकी एरिया वेक्टर किस साइड होगी? बाहर की तरफ। ठीक है, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस है तो इस साइड भी बाहर निकलेगी, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर। और यहाँ भी गॉसियन सरफेस बनाया है, गॉसियन सिलेंडर बनाया है, तो यहाँ का भी एरिया वेक्टर किधर होगा? हमेशा आउटवर्ड होता है। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स लेफ्ट प्लस फ्लक्स राइट, टोटल फ्लक्स। ओके, सो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एरिया वेक्टर, सो ई a cos theta. So what is the angle here? Angle between electric field and area vector is 0 degree. That's why cos 0 is 1. So phi is equal to E into A. ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है, एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है। ये हमने गॉसियन सिलेंडर क्यों चूज किया है? क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस में क्या होने वाला है? यूनिफॉर्म होने वाला है इस डिस्टेंस पे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हर पॉइंट पे क्या होगा? 0। और ये जो हम बनाते हैं ये ऐसा बनाना कि मैक्सिमम सेंटर से लेते हुए पूरा पार्ट को कवर कर ले। पूरा ऐसा तो कवर नहीं करेगा, लेकिन इसके अंदर जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस एरिया। सो दिस इज ए आई हैव टेकन। ओके, सो फ्लक्स जो बनेगा क्या होगा? इसकी जो एरिया होगी, मतलब ये पार्ट की जो एरिया हो रही थी वही ये पार्ट की भी एरिया है। ठीक है, अगर ये पार्ट ऐसा बड़ा सरफेस लेंगे तो बड़ा गॉसियन सरफेस बनेगा, ऐसा है ना, यहाँ बड़ा बनाना पड़ेगा इस तरह से। तो ये एरिया आखिर कौन सा है? जो एरिया हमने सेंटर पे लिया है वो एरिया है। ठीक है, सो फाइव यू विल गेट द नोट्स फ्रॉम द PDF ऑफ दिस लेक्चर। ओके, एक प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्लक्स लेफ्ट क्या बनेगा? ये लेफ्ट है, ई ए कॉस 0 लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। सिमिलरली राइट के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन, द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। सो टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 2EA, EA प्लस EA, cos 0 1 हो जाएगा। सो दिस इज 2EA। नाउ व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या बनेगा? हम एक फ्रॉम द गॉस थ्योरम, GT मींस गॉस थ्योरम, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें Q कितना इनक्लोज है? ये जो एरिया मैंने बड़ी वाली अगर एरिया कंसिडर कर रहा हूँ, ये शीट की बड़ी वाली एरिया कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसमें कितना चार्ज होगा? तो वो चार्ज होगा, जितना चार्ज होगा वो सिग्मा इंटू ए होगा। और ये ए किसका है? ये इसका एरिया है। छोटा लूंगा तो छोटा एरिया लेना होगा, बड़ा लूंगा तो बड़ा एरिया लेना होगा, तो ये पूरी एरिया में ले रहा हूँ, दैट इज ए। ठीक है, सो Q फ्रॉम गॉस थ्योरम वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। सो 1 इज इक्वल टू 2 इक्वेट कर देंगे, देन 2EA इज इक्वल टू Q इन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? E इज इक्वल टू Q इन बाय 2EA। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है ये दोनों सरफेस के लिए निकला है। एक साइड निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों के लिए दो साइड, अगर हम ऐसा शीट कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके कारण जो बनेगा इस साइड मिला करके कितना बनेगा? ये। और जो हम गॉसियन सिलेंडर जो कंसीडर करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि हम सेंटर से कंसीडर कर रहे हैं, और हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया चाहे तो ले सकते हैं। इतना बड़ा अगर एरिया लेते हैं तो ये एरिया क्रॉस सेक्शन आ गया। इसके अंदर का चार्ज क्या होगा? इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होती है, इनटू सिग्मा इंटू ये एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे जो एरिया इसका है, तो ये पूरा क्या निकल जाएगा? इस पार्ट का चार्ज निकल जाएगा। अब इस चार्ज के कारण हमने क्या बनाया? एक गॉसियन सिलेंडर बनाया। इस गॉसियन सिलेंडर से क्यों बनाया? गॉसियन सिलेंडर तो था नहीं, ये एक्चुअली में हमने ऐसा कंसिडर किया। गॉसियन सरफेस हम बनाते हैं क्योंकि हम इस चार्ज के कारण, इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी r डिस्टेंस पे निकले, क्योंकि एक चार्ज रहता तो आप KQ/r² से निकाल सकते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ पर तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, सो यू कैन नॉट यूज डायरेक्टली सिंगल फॉर्मूला। तो आपको एक सरफेस लिया आपने, उसके हिसाब से आपने गॉसियन सिलेंडर बनाया, इस पॉइंट पे निकालना था तो इसका गॉसियन सिलेंडर बनाया, और ये गॉसियन सरफेस में ये पूरे प्लेन में, ये पूरे एरिया में, ये जो पार्ट आपका आ रहा था ना, ये पूरा एरिया में, इस पार्ट के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड होती है। एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड, द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो आप इसको सॉल्व करोगे, दिस इज इन स्केलर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म में लिखना तो क्या करोगे? वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप दे देंगे, वेयर r कैप इज व्हाट? r कैप इज यूनिट वेक्टर।
इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि हम गॉसियन सरफेस, जिसे ये चार्ज है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम सेंटर से कंसिडर करेंगे, ठीक है। सेंटर यहाँ से नहीं, सर्कल ऐसे तो नहीं होगा, सेंटर से मैक्सिमम पार्ट जो कवर होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। शीट क्यों कहा? क्योंकि थिकनेस कम है, लेंथ और ब्रेथ ज़्यादा है कुछ डिस्टेंस पे, ऐसा नहीं इन्फाइनाइट तक होगा। इसको इन्फाइनाइट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि डिस्टेंस इज वेरी लेस, the distance where we have to find the electric field is very less compared to the dimension of this sheet. That's why it is called infinitely thin sheet. Thin क्यों बोला जा रहा है? Because this thickness is very less compared to the length of and breadth of this area. Clear? Okay. You will get the notes from the PDF of this lecture. Okay. Description में जाना, आपको मिल जाएगा notes. Okay. This is the second derivation. In this derivation there are two sheet. Okay. यहाँ पर आपको दो sheet है और दोनों कैसे शीट है? दोनों पे चार्ज है, ठीक है। शीट 1 हैविंग चार्ज प्लस क्यू, शीट 2 हैविंग चार्ज माइनस क्यू, बोथ आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस टू शीट ऑफ चार्ज यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द थ्री रीजन। द रीजन नंबर 1, दिस इज रीजन नंबर 1, this is region number 2 and this is region number 3. You have to use the previous concept of previous derivation and you have to find the electric field between these two region. मैंने क्या किया है, ये जो शीट है ऐसे, इसका फ्रंट व्यू आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑल्सो फ्रंट व्यू, तो दो शीट इसका फ्रंट व्यू बना दिए। ये दूसरा शीट है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसका भी फ्रंट व्यू हमने बना दिया। नाउ यू सी in this sheet positive charge is distributed. Let sigma 1 is the surface charge density of this plate 1 and this sigma 2 is the surface charge density of charged sheet 2. charged sheet है, sheet का मतलब होता है इसकी लेंथ के हिसाब से इसकी थिकनेस बहुत कम है और हम निकालने चाहते हैं कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में कितनी होगी, ठीक है। तो देखो तीन रीजन है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, ठीक। प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता है आउटवर्ड होगा, सो दिस इज 1 शीट 1 हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1। व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिग्मा चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, दैट इज E1। सिमिलरली दिस इज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा? अंदर की तरफ। अब ये जो अंदर की तरफ बन रहा है ये कहाँ से आ रहा है? जरूर यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, थोड़ा सा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट थोड़ा यहाँ भी है। तुम बोलोगे इसका नहीं है सर, इसका नहीं है क्या यहाँ पर इफेक्ट? इसके रेस्पेक्ट में बहुत कम है, इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं। E2 इस साइड आ रहा है, मतलब यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, ठीक है। उसी तरह इसमें अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये E2 आगे जाएगा, आगे जाएगा, तो ये E2 का इफेक्ट इस साइड भी रहेगा, ठीक है ना, है ना। तो सॉरी, ये तो E2 का पहले से यहाँ है और एक E2 का यहाँ है, तो E1 का बाहर की तरफ था, तो इस साइड क्या होगा, इस रीजन में E1 ये बाहर की तरफ भी होगा, तो यहाँ पर 2 आ गए, यहाँ पर 2 आ गए, यहाँ पर 2 आ गए, क्योंकि ये E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट 1, इसकी इफेक्ट यहाँ पर भी होगी क्योंकि ये आगे बढ़ेगा ना। तुम बोलोगे सर इसकी इफेक्ट यहाँ नहीं होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि ये नज़दीक है, इसकी इफेक्ट को हम काउंट करते हैं, ठीक है। नाउ देयर आर 3 रीजन एंड वी हैव एंड दे आर स्पेस, द स्पेस बिटवीन देम इज r एंड r कैप है पोजीशन डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। So what is the form net electric field in region 1? There are 2 electric field. देखो एक्चुअली में हमें 2 चार्ज शीट के कारण 3 रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है। गॉस थ्योरम का यूज़ करके हम क्या कर रहे थे? गॉस थ्योरम का हम यूज़ करके किसी भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर है उसके कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते थे गॉस थ्योरम का हेल्प से। इन सिंपल वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड, अगर ये एक शीट है, ठीक है, एक शीट ऑफ चार्ज है, इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक गॉसियन सरफेस बनाते थे r डिस्टेंस पे,
ठीक है, गॉसियन सिलेंडर बना करके निकाल लिए इससे पहले वाले डेरिवेशन में। तो ई की फॉर्मूला क्या आई थी, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, देखो तो ई का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था इससे पहले वाले डेरिवेशन में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज फॉर चार्ज शीट के दोनों साइड के लिए था। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये दोनों साइड के लिए है, तो एक साइड के लिए अगर निकालना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन हम दोनों वाला यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो E1 माइनस E2 क्यों करेंगे, हमने एक कन्वेंशन यूज़ किया है, देखो ध्यान से, लेफ्ट में जो लेफ्ट की तरफ है उसको नेगेटिव लेना और जो राइट की तरफ है उसे पॉजिटिव लेना, ये कन्वेंशन हमने अपना डायरेक्शन माना है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ E, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इस साइड है इसलिए नेगेटिव, E2 किस साइड है, राइट साइड है, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव। बट व्हाट इज द डायरेक्शन, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो नेट इज व्हाट, नेट इज, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो बीच में क्या करेंगे, नेगेटिव। दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, क्या करेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई, टेक नेगेटिव कॉमन, यहाँ आर कैप क्यों दिए है, वेक्टर है, आपको वेक्टर लिखना पड़ेगा, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पर आपने वेक्टर में रिप्रेजेंट किया है, सो इन दिस साइड ऑल्सो यू हैव टू यूज वेक्टर। ऐसा थोड़ी कि एक साइड वेक्टर करो और एक साइड स्केलर करो, ऐसे नहीं होता है, दोनों साइड वेक्टर करना पड़ेगा। ये वेक्टर क्वांटिटी आपने रिप्रेजेंट किया है तो आपको इस साइड भी वेक्टर में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो आर कैप की डायरेक्शन इस साइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किधर आ रहा है, इस साइड, आर कैप की डायरेक्शन किधर है, इस साइड, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए आगे साइन क्या आ गया, माइनस। एलसीएम लेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर मान लो दोनों सेम है, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, ठीक है, तब क्या होगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा। इन दैट केस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में देखो, ठीक है, यहाँ पर हम सिग्मा 1 सिग्मा सिग्मा यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा, आगे माइनस है, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, आगे साइन क्या है, माइनस। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1। नाउ यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2। हाउ टू फाइंड इट, वेरी सिंपल, दिस इज रीजन 2, आपको क्या करना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो आप यहाँ 1 को हटा के क्या करोगे, 2 कर दोगे। व्हाट इज द डायरेक्शन, बोथ आर हैविंग सेम डायरेक्शन, दैट्स वाई प्लस साइन यूज़ करना। अब दोनों राइट की तरफ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ तो पहले से प्लस है, प्लस हो गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा बताओ, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये कट गया, यहाँ पर प्लस हो गया, मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेकेंड रीजन में आया वो क्या आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है, आर कैप की भी डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दैट्स वाई हियर पॉजिटिव। सिंपल है, देख लो सिंपल है, सेकेंड वाला भी हो गया। अब निकालना है थर्ड में, ये चीज़ याद रखना, लेफ्ट में नेगेटिव लेते थे कन्वेंशन, राइट में पॉजिटिव लेते थे, यही पढ़े थे ना बचपन में स्केल में, ठीक है। अब थर्ड रीजन में आ जाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो बीच में कौन सा साइन होगा, माइनस। तो देखो ये 3 करेंगे, तो E1 की डायरेक्शन किधर है, राइट, तो राइट को क्या लेंगे, पॉजिटिव। E2 की डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट, तो E2 को क्या लेंगे, माइनस। इन दोनों का डायरेक्शन कैसा है, रिवर्स है, अपोजिट है, तो बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस, ठीक है। लेकिन आप बताओ यहाँ पर E1 माइनस E2 हुआ कि E2 माइनस E1 हुआ, कौन ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर कौन बड़ा है, E1 बड़ा है, E1 तो दूर है तो ज़्यादा डिस्टेंस में E1 छोटा हो जाएगा, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, E2 माइनस E1 करना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखना आप, है ना, नेट मतलब जो ज़्यादा बड़ी होगी उससे हम माइनस करेंगे तो E2 माइनस E1 करेंगे, ठीक है। तो E2 माइनस E1 करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, E2 माइनस E1 करेंगे यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा बताओ, ये E2 के जगह में क्या लिखेंगे, सिग्मा 2, और E2 किस साइड है, लेफ्ट साइड है, इसलिए आगे क्या साइन देंगे, माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट। बीच में कौन सा साइन देंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए बीच में कौन सा साइन देंगे, माइनस। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ E1, E1 किधर है, राइट, तो यहाँ क्या लेंगे, प्लस, और यहाँ क्या लोगे आप, सिग्मा 1, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है बताओ, माइनस माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, माइनस अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये भी तो क्या हो गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2,
ठीक है, दिस इज रीजन नंबर 3। ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बोथ आर सेम। ठीक है, अगर दोनों सेम रहेंगे तो ये माइनस साइन आर कैप है, तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, माइनस। इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू बोथ आर हैविंग सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, इन दैट कंडीशन सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, पुट कर देंगे इसमें, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा कैंसल हो गया, तो क्या बचा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और आगे क्या साइन आएगा, माइनस। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, और आर कैप इस साइड है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड है, इस साइड है। ठीक है, क्योंकि E2 क्या है, E2 इज इन दिस रीजन, E2 इज ग्रेटर देन E1, इन दिस रीजन E1 इज ग्रेटर देन E2, क्योंकि नज़दीक है ना, प्लेट के सामने ज़्यादा उसकी पावर रहेगी, तभी तो बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। ठीक है, यू कैन कॉपी और यू कैन, और इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बताया था कि चार्ज अगर यूनिफॉर्मली किसी लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइन चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपका पूरा इस वीडियो को अटेंड करने का मतलब है आपका पूरा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के सारे डेरिवेशन हो जाएंगे। ठीक है, कॉपी करना तो कर सकते हो, नहीं तो मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ द सेकेंड डेरिवेशन इज, सपोज देयर आर 2 शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, देयर आर 2 शीट ऑफ चार्ज, मतलब 2 शीट है, चार्ज शीट है, कम थिकनेस है, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस चार्ज के कारण, इस शीट ऑफ चार्ज के कारण इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इस साइड भी बनेगी, और एक और शीट ऑफ चार्ज है, दोनों ऐसे करके पैरेलल रखे गए हैं। मान लो दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कई हो सकते हैं। हमने पहला जो कंडीशन लिया है, दोनों पॉजिटिव। ठीक है, अब इस शीट ऑफ चार्ज के कारण आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों रीजन में कितना होगा। 3 रीजन कौन कौन से है, ये वाला, सेंटर वाला और एक इस साइड वाला, तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये आपको बताना है। गॉस थ्योरम का सिंपल यूज है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। कंटिन्यूअस चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डिस्टेंस पे निकालना है तो आप गॉसियन सरफेस बनाते हो। मान लो एक शीट ऑफ चार्ज है, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप क्या करोगे, एक चार्ज से तो नहीं बनेगा, कंटिन्यूअस चार्ज है, कई चार्जेस से बनेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सिलेंडर बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर एक छोटा सा गोल सा एरिया लेना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो सिंपल समझ लो, फिर क्या है कि कोई भी डेरिवेशन आप कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, इतना ज़्यादा एरिया वाला मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया, एक ऐसा ही करके बनाया। अब इसके अंदर चार्जेस तो पूरे शीट में है, तो मैंने इतना सरफेस बनाया और इसका एरिया मैंने नाम क्या दे दिया, इसका एरिया मैंने नाम दे दिया ए। इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कितनी चार्ज है, तो इसके अंदर चार्ज होगी Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ठीक है, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अब इस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस शेप का ऐसे शेप करके एक ऐसा बनाएंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस अपने मन से बनाया जाता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करनी है। क्लियर, तो हमने यहां पर क्या बनाया, एक गॉसियन सिलेंडर बनाया और ये r डिस्टेंस पर है। ओके, नाउ यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगा, इसके कारण गॉसियन एरिया, गॉसियन सिलेंडर जो बना वो ऐसा गोल सा बना था, इसकी एरिया इस साइड होगी, ऐसे एरिया है ना। आपने गॉसियन सिलेंडर अगर इसके कारण बनाए तो कैसा बनेगा बताओ, गॉसियन सिलेंडर ऐसा करके गोल सा बनेगा, ये r डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये गोल सा है ऐसा पार्ट, तो गोल सा पार्ट का ऐसा पार्ट है, तो कर्व पार्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कर्व पार्ट का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, एंगल 90 डिग्री, फ्लक्स कितना बनेगा, 0। लेकिन अगर यही पार्ट को आगे बढ़ाते हैं, ऐसा राउंड करते हैं, मान लो ऐसे करके मैंने राउंड कर दिया, अगर तुमको मैं समझा देता हूँ क्लियर इसके लिए। अब इतना पतला नहीं बनाएंगे, जितना ज़्यादा एरिया हम कवर कर सके उस एरिया को हम कंसिडर करेंगे। तो हमने ऐसा लिया, दिस इज द डिस्टेंस r एंड यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस डिस्टेंस, दैट इज r डिस्टेंस। तो ये पार्ट तो कर्व है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, चार्ज के कारण तो सीधा ही निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा निकल रहा है। इसका एरिया वेक्टर किधर निकलेगा, ऊपर की तरफ, तो एंगल कितना हो गया 90, और जब भी एंगल 90 होता है तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स 0 होगा। लेकिन ये पार्ट आप जब सोचो, इस पार्ट का क्या होगा, इस पार्ट का क्रॉस करेंगे तो ये गॉसियन सरफेस जो बना है इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाइन भी इधर ही सीधा निकल करके आ रहा है, क्योंकि चार्जेस देखो, चार्जेस इस पूरे शीट पे है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर निकल करके आ रहा है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो एंगल कितना था 0। इससे पहले वाले डेरिवेशन में जो बताया मैंने पूरा यही बताया। अभी जो डेरिवेशन करना है हमें करना है कि दो शीट ऑफ चार्ज है, दो चार्ज शीट है, एक शीट ये है एक शीट ये है, ठीक है, दो शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है, ऐसे करके दो शीट ऑफ चार्ज है और इसके बीच में हमको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 रीजन मिल रहे हैं। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल 3 रीजन, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर सेंट्रल मिडिल रीजन और रीजन 3। तो बहुत सिंपल है, देखो क्या करेंगे हम यूज करेंगे जो हमने इससे पहले वाले इक्वेशन में हमने जो डिराइव किया था। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण, एक शीट के कारण, शीट ऑफ चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं दोनों साइड तो कितना निकला था, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर दोनों मिला करके कितना निकला था, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट। अब यहाँ पर देखो वी हैव कंसिडर 2 शीट। अब शीट हमने बनाया है तो हम ऐसे भी करके बना सकते हैं, नहीं तो हमने आपको फ्रंट व्यू बनाया, दिस इज द फ्रंट व्यू। तो आप फ्रंट में देखो तो आपको एक लाइन दिखाई दे रहा है, तो ये किस तरह से लाइन हो गया, ठीक है। दूसरा है ये दूसरा शीट है, इसमें भी लाइन है, या तो आप ऐसे करके भी बना सकते थे, इस तरह का एक शीट है और ये दूसरा शीट है, ठीक है, इस तरह से भी बना सकते, इसमें चार्जेस इस तरह से भी बना सकते थे, लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो हमने क्या किया, ऐसे करके थिन शीट लिया, ऐसे करके थिन शीट लिया। 1 मिनट, बर्तन की आवाज आ रही थी ना इसलिए। अब देखो क्या करेंगे, हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रीजन, ये दो शीट है, इस साइड निकालना है, बीच में निकालना है, इधर निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमने इसका फ्रंट व्यू लिया, दिस इज शीट एंड फ्रंट व्यू इज स्ट्रेट लाइन, दैट्स वाई ये प्लस ऐसे बनाए। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, ये बाहर के वो दूसरे घर की आवाज आ रही, मेरे घर में तो नहीं है ऐसी आवाज, ठीक है, कुछ कर भी नहीं सकते। दिस इज प्लस क्यू चार्ज, दिस इज ऑल्सो प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज आउटसाइड, E1, दिस इज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1। पहले शीट का नाम प्लेट 1 रखा, ये फर्स्ट शीट है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, σ1। दिस इज सेकेंड चार्ज शीट, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, σ2। अब देखो हमने एक कन्वेंशन यूज किया है, लेफ्ट साइड हम नेगेटिव यूज करेंगे, राइट साइड हम पॉजिटिव यूज करेंगे, बहुत सिंपल है। लेफ्ट साइड हम क्या यूज करेंगे, नेगेटिव, मींस E1 नेगेटिव, E2 नेगेटिव, इस साइड क्या लेंगे नेगेटिव और इस साइड क्या लेंगे पॉजिटिव। तो देखो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, ड्यू टू दिस शीट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड दिस एंड टुवर्ड दिस आउटवर्ड होगा। उसी तरह इसके कारण भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा E2, ये सेकंड है तो इससे E2 बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल 3 रीजन, तो पहला रीजन लिया दैट इज E1। तो इन दिस रीजन हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, E is equal to E1, that is electric field in region 1 is equal to E1 plus E2, ठीक है। क्यों लिए भाई E1 plus E2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। लेकिन E1 का फॉर्मूला क्या बताए थे, E1 का फॉर्मूला σ/2 एप्सिलॉन नॉट बताए थे, एक शीट के चार्ज के कारण क्या बना था, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 की वैल्यू क्या होगी, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव साइन देने का मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव साइन, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज टुवर्ड लेफ्ट and we have considered left direction is taking as negative and right direction I have taken as positive, that's why negative, and here also negative because both are having same direction, that's why in left direction, that's why I put here negative, and why I put here positive sign, the reason behind this is both are having same direction. If they are in opposite direction then we have to use here minus sign. Clear? σ1 and σ2 are the surface charge density of charge plate 1 and charge plate 2. You will get the notes from the PDF of this lecture, means this video, okay. Now what is the direction of r cap क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर में नहीं दिखा सकते, स्केलर में भी दिखा सकते हैं, बट इफ यू वांट टू डिनोट इन वेक्टर क्वांटिटी यू हैव टू पुट एरो ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस इज वेक्टर नोटेशन एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई r cap, बिकॉज r cap इज फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 2, दिस इज प्लेट 1, दिस इज प्लेट 2, ये डायरेक्शन इधर है। और नेगेटिव साइन देने का रीजन क्या था, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, देखो ये डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर है, दैट्स व्हाई आई पुट हियर नेगेटिव एंड r cap की डायरेक्शन इस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है, दैट्स व्हाई बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई द नेगेटिव साइन इज देयर, ठीक है। आप एलसीएम ले लेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। माइनस r cap देने का रीजन आपको बता दिया, r cap इज अ यूनिट वेक्टर, इट्स ओनली यूज्ड टू प्रोवाइड द डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ आपने वेक्टर लगाया, दैट्स व्हाई यू हैव टू मल्टीप्लाई 1 यूनिट वेक्टर। r cap की डायरेक्शन किधर है, इस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक इन नेगेटिव साइन। क्लियर? अब देखो माइनस तो यहाँ कर दिए,
सो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आएगा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, अगर दोनों सेम है देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सॉल्व करेंगे ये आएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 1। विच रीजन? लेफ्ट रीजन। दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, राइट है, लेफ्ट है, दिस इज सेंटर। सिमिलरली यू कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 2। हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पर देखो ये दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, तो बस यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ लिखना क्या 2, यहाँ क्या हो जाएगा E1 था और ये E2 का डायरेक्शन इधर है, तो क्या लिखोगे, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस हो जाएगा। अब बताओ राइट हैंड साइड को हमको पॉजिटिव लेना है तो हमको क्या लेना होगा, E1 को क्या लेना होगा, देखो ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट था तो नेगेटिव लिए थे, अभी तो राइट है ना, तो वी हैव टू टेक इट पॉजिटिव। सिमिलरली E2 की डायरेक्शन लेफ्ट है तो इसको नेगेटिव ही रहने देना है, दिस इज आर कैप। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, प्लस सिग्मा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लोगे बताओ, यहाँ आर कैप हो गया, ये प्लस सिग्मा 1 हो जाएगा, दिस इज प्लस सिग्मा 1, सिंपल है, प्लस सिग्मा 1 और ये क्या था माइनस सिग्मा 2। इफ बोथ आर सेम, सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स दोनों प्लेट सेम है, दोनों के एरिया सेम है, दोनों पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड सेम है, इन दैट कंडीशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकंड रीजन इज हाउ मच, यू टेल मी। Sigma 1 is equal to sigma 2 is equal to sigma, that's why this will become 0, and anything multiplied by 0 is how much, anything multiplied by 0 is 0, that's why electric field in the second region will become 0. ठीक है, now electric field in the third region, this region, you tell me, both are in same direction, that's why we have to use E1 plus E2, you have to use plus। अब दोनों की डायरेक्शन किधर है बताओ, दोनों राइट की तरफ है, राइट की तरफ क्या कन्वेंशन लेना है, हमने पॉजिटिव लेना है, तो हमने क्या लिखा प्लस, इसका भी क्या लिखेंगे प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर साइन क्या चेंज हो जाएगा बताओ, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, दोनों प्लस हो गए, तो यहाँ 0 नहीं होगा, ये थर्ड रीजन में क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज थर्ड रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द थर्ड रीजन, इससे पहले वाला सेकेंड था, दिस इज थर्ड रीजन। ओके, नाउ दिस इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू 2 सिग्मा। ठीक है, ठीक है, प्लस हो गया, दिस विल कैंसल, सो दिस थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द थर्ड रीजन विल बिकम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द थर्ड रीजन क्या होगा बताओ, बहुत सिंपल है, आर कैप सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉजिटिव साइन, थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड रीजन का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और आर कैप का भी डायरेक्शन ये है, बोथ आर हैविंग सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई हियर पॉजिटिव साइन इज देयर। दिस इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, ओके, यू कॉपी इट, अदरवाइज यू विल गेट द नोट्स फ्रॉम द PDF। Now the next derivation is electric field due to uniformly thin spherical cell। थिन स्पेरिकल सेल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये एक शेल है, ठीक, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एयर है, ठीक है, तो ये एक मेटल का है और इसको थिन स्पेरिकल शेल है, इसको मैंने चार्ज दिया है, ठीक है, तो हमने जो भी चार्ज दिया, अंदर में तो स्पेस है, कुछ नहीं, एयर है, तो जो भी चार्ज देंगे वो सरफेस पे रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, तो हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस r on the surface of this spherical surface and inside this spherical shell। spherical shell का मतलब hollow shell, मतलब चार्ज आउटसाइड है लेकिन अंदर में क्या है, hollow है, एयर है, मतलब स्टील का या मेटल का समझ लो फुटबॉल है, ठीक है, मेटल शेल ऐसा कह सकते हो तुम, ठीक है। तो स्पेरिकल सेल से क्या होगा, तो इसमें क्या करना, ये डेरिवेशन कई बार एग्जाम में आता है, तो हम तीनों केस अभी देखेंगे। ये समझ में आया आपको, आउटर सरफेस पे इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो वी विल यूज गॉस थ्योरम कॉन्सेप्ट। व्हेनेवर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, है ना, कभी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट टाइम वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कंटिन्यूस चार्ज विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, सो इसके लिए हमको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। अब बताओ, अगर इस पे चार्ज है, हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसकी रेडियस कैपिटल R है, इसकी रेडियस कैपिटल R है, और सेंटर से हम सारा डिस्टेंस मेज़र करेंगे। ऐसा नहीं मेज़र करेंगे कि यहाँ से चार्ज यहाँ पर है तो यहाँ से करेंगे, यहाँ भी तो चार्ज है, हर जगह चार्ज है,
तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे जैसे अगर चार्ज मान लो किसी पर है, ठीक है, हर जगह चार्ज है, तो सबका ओरिजिन कैसा होगा, सबका ओरिजिन सेंट्रल होगा, मतलब ये ऐसे निकल रहा है, ये ऐसे निकल रहा है, ये ऐसे निकल रहा है, ये ऐसे सब तरफ निकल रहा है बाहर की तरफ। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सबको अगर तुम कोइंसाइड करोगे तो सबका कहाँ पर कोइंसाइड करेगा, सेंटर पे करेगा। तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे सारा डिस्टेंस वी विल मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। सो द R is the capital R is the radius of this sphere and we have to find electric field at R. Here small r is greater than capital R, मतलब R पॉइंट जो है, R रेडियस, वो इस स्फीयर के बाहर लाई करता है। यहाँ पर आपको इस चार्ज सेल के कारण यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप क्या करोगे बताओ, आपको यहाँ पर निकालना है। आप ये रेडियस लेकर के, स्मॉल r रेडियस सेंटर से लेकर के एक गॉसियन सरफेस बनाओगे। यहाँ R, वही R डिस्टेंस पे एक इसका क्या बनेगा, एक क्लोज सरफेस बनेगा, स्फीयर बनेगा। उस स्फीयर का एरिया क्या होगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। एक्चुअल में स्फेरिकल सेल का एरिया क्या है, 4 पाई r स्क्वायर। तो वो गॉसियन एरिया हो गया, ठीक है। और उस गॉसियन एरिया से, उस गॉसियन स्फीयर से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर निकल रही है और वो गॉसियन सरफेस को पार करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन व्हेनेवर पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस फॉर्म्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स and that flux is given by electric field into area into angle between electric field and area vector। समझ में आ रहा है, मतलब क्या है, आपको यहाँ पर निकालना है इस r डिस्टेंस पे। तो आपने क्या बना दिया, एक स्फीयर बना दिया, इतना बड़ा सा स्फीयर। उसकी एरिया क्या माना, a, उसकी एरिया क्या होगी, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि r डिस्टेंस स्मॉल r आपने लिया। इसकी एरिया क्या होगी, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये 2 पॉइंट याद रखना। Gaussian area is 4 pi small r square, area of this sphere is 4 pi r square। क्लियर। तो अभी हम कैसे गॉस थ्योरम का, एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे निकल रहा है, उस गॉसियन एरिया से पास करेगी, तो ये एरिया पे क्या बना, ये जो बाहर की एरिया जो है जिसके अंदर ये है, ये गॉसियन सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया से दोनों मिला करके फ्लक्स बना। तो वो फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू पूरा एरिया, स्मॉल एरिया ले लेंगे, पूरा एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी निकल रहा और इस साइड का एरिया वेक्टर क्या होगा, इस साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी निकल रहा और इस साइड का एरिया वेक्टर क्या होगा, ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हर जगह क्या है, सेम है। तो एंगल क्या लेंगे, 0 डिग्री। अब आपको समझ में बहुत ही ईजी आ जाएगा, आप ध्यान से देखना। दिस इज स्पेरिकल सेल। अब इसको मैंने बोर्ड पे बनाया, 2 डायमेंशन में बनाया है, ये ऐसा है। तो इसको मैंने प्रोजेक्ट किया, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये गोल सा पार्ट दिखाई दे रहा है ऐसा। तो इसका ये फ्रंट व्यू है। R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दिस स्फीयर। स्पेरिकल सेल है, इसके अंदर क्या है, एयर है, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड यू नो द फॉर्मूला फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q/A, चार्ज अपॉन एरिया। मीन्स इस पे चार्ज अगर Q है और इसकी एरिया अगर A है, तो क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई एरिया क्या होगा इसका बताओ, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज P। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, देखो यहाँ से निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ भी होगा, यहाँ से भी निकलेगा। तो हम ये डिस्टेंस नहीं लेंगे, हम सेंटर्स का उसका ओरिजिन मानेंगे कि सेंटर से आ रहा है, क्योंकि यहाँ का भी तो चार्ज है, ये भी तो कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ पर ऐसे। तो ये इतनी डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ हो गया, ये इतना डिस्टेंस, दोनों का एवरेज ले लो, ये प्लस ये डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा। इसलिए हम सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, सेंटर से। तो सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मानी गई है, R, स्मॉल r, ठीक। और सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, स्फेरिकल सेल की, कैपिटल R। हियर यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर इसका क्या होगा, बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बाहर की तरफ। एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। दिस इज गॉसियन स्फीयर। गॉसियन सरफेस हमको कहाँ बनाना रहता है, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है।
फिर से बोल रहा हूँ, गॉसियन सरफेस कहाँ बनाना पड़ता है? जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हमें यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस ऐसा बनाना कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। कहने का मतलब ये आर डिस्टेंस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होने वाली, ये आर डिस्टेंस में वही इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली। तभी तो इसका नाम पड़ा गॉसियन स्फीयर, क्योंकि गॉसियन स्फीयर ऐसा बना है जहाँ पर एवरीवेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। तभी तो हम इस पर गॉस थ्योरम लगाएंगे। ऐसा आपको बनाना पड़ता है गॉसियन सरफेस। ठीक है, चलो अब क्या करना है? बस खाली थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करेंगे गॉस थ्योरम का। जैसे यहाँ पर क्या किया गया है, देखो, इफ फर्स्ट कंडीशन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये आर जो है यहाँ से यहाँ आपको निकालना है, इस पॉइंट पे आपको निकालना है। दिस आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर मीन्स, तो आप फ्लक्स गॉस लॉ क्या मतलब गॉस थ्योरम से क्या जानते हैं? फ्लक्स इज इक्वल टू, जनरल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, जीएस मीन्स गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स बनेगा? तो ई इंटू गॉसियन एरिया लोगे। ये एरिया किसका लेना होगा? दिस इज एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस का एरिया, और गॉसियन सरफेस का एरिया कितना था? 4। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती मत करना। ठीक है, इसमें आपको गलती नहीं करना है। गॉसियन सरफेस से आप फ्लक्स निकाल रहे हो, इस सरफेस, ये जो सरफेस दिख रहा है इसके कारण फ्लक्स निकाल रहे हो, तो आपको ये वाला एरिया लेना पड़ेगा। और ये एरिया कितना है? ये रेडियस अगर आर है तो 4πr² इज द सरफेस एरिया ऑफ दैट स्फीयर। तो इसलिए आपको यहाँ पर 4πr² लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, तो वही लिखे। और फ्रॉम गॉस थ्योरम हम क्या जानते हैं? फ्लक्स फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या जानते हैं? Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? इस गॉसियन सरफेस जो तुमको दिख रहा है, ये गॉसियन सरफेस, इसके अंदर चार्ज है Q। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज दिस Q? Q क्या है? देखो, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आर। ये चार्ज की वैल्यू कितनी है? सिग्मा इंटू आर। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। कितना सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इंटू एरिया कर देंगे तो चार्ज निकल जाएगा उसका। ठीक है, तो Q इन बाई तो सिग्मा, और एरिया कौन सा लेंगे बताओ? एरिया हमने ये 4πr² क्यों लिया है? कैपिटल स्मॉल आर क्यों लिया है? क्योंकि इस पर, इस स्मॉल सेल पर कितना चार्ज है? दैट इज 4πr²। क्योंकि Q जो है इस पर है, इस पर चार्ज थोड़ी, ये तो हमने बनाया है। गॉसियन सरफेस तो हम बनाते हैं फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, गॉसियन सरफेस हम फाइंड करने के लिए, गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ठीक है, चलो अब कुछ नहीं किया गया है, 1 और 2 को इक्वेट कर दिया गया, इसके जगह वैल्यू पुट कर दिया गया है। 1 इज इक्वल टू 2 कर दिया गया। तो देखो 1 में क्या था? E डॉट 4πr², E डॉट 4πr²। यहाँ पर क्या है? सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R², सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R² एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4π कैंसिल हो गया, तो E क्या बचा? E इज इक्वल टू R² बाई स्मॉल r² एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा। या इससे भी सिंप्लीफाइड टर्म तुम क्या कर सकते हो बताओ? अगर तुम सिर्फ इससे और इससे इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, ये जो दिख रहा है ना, 2 नंबर इसमें लिखा हूँ, 3 नंबर इसमें लिख रहा हूँ, तो इससे क्या मिलेगा? E डॉट 4πr² इज इक्वल टू, है ना, E डॉट 4πr² इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ? Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इनसाइड चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल गया? 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाई R²। R क्या है? जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब इट एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज। अगर बाहर निकलना तो बाहर निकालने के लिए पॉइंट चार्ज, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि सेल पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका ओरिजिन सेंटर है और ये बिहेव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। इस तरह से बिहेव करेगा ये, मतलब एज ए पॉइंट चार्ज इट बिहेव। क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए भी यही फॉर्मूला निकला था, Q/R², है कि नहीं? तो हमने बाहर निकाला। यही फॉर्मूला चेंज कैसे होगा? अगर मैं R को कम करते करते कहाँ आ गया? इफ R इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब सरफेस पे आ गए, मतलब ये जो R बाहर था अब सरफेस पे आ गए। तो फॉर्मूला में सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा? सब कुछ सेम रहेगा, R की जगह कैपिटल R कर देना। तो सेकंड केस क्या होगा? व्हेन R इज इक्वल टू R देन फॉर्मूला विल चेंज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ बाई, मतलब ये एक तरह से K का वैल्यू हो गया 1/4π एप्सिलॉन नॉट KQ बाई R², कैपिटल R²।
तो आपको दो कंडीशन बताए, बाहर बताए, सरफेस से बताए। अब बात आ जाओ अंदर बात करेंगे, मतलब इसके अंदर अगर हम आर अभी अंदर आ गया, ठीक है, आर पहले बाहर था, यहाँ था, सरफेस पे आ गया, मतलब आर इज इक्वल टू आर आ गया। अब आर लेस देन आर आ गया, मतलब यहाँ पर कहीं पॉइंट है, तो यहाँ पर जहाँ पर निकालना हो गॉसियन सरफेस बना देंगे। तो ये गॉसियन सरफेस अंदर में बनाए। अब एक चीज़ बताओ, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या? हमने तो माना था कि ये चार्ज का ओरिजिन सेंटर है, लेकिन एक्चुअली में तो ऐसा नहीं है। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दिस सरफेस। तो अभी चार्ज कहाँ है? चार्ज तो यहाँ पर है, तो हमें यहाँ निकालना था, तो हमने यहाँ पर अंदर आकर के गॉसियन सरफेस बनाया ऐसे, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, इसके अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, तो चार्ज यहाँ आप क्या लिखोगे? क्यू इन की जगह में क्या लिखोगे? क्यू नेट इस गॉसियन सरफेस के अंदर। गॉस थ्योरम का मतलब क्या होता है? क्यू नेट, क्यू इनसाइड दैट गॉसियन सरफेस। अभी गॉसियन सरफेस चेंज हो गया है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी रहती है वहाँ हम गॉसियन सरफेस बना देते हैं। अभी तुम अंदर आ चुके हो, अंदर आ चुके हो मीन्स इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं मीन्स चार्ज क्या हो गया? जीरो। फ्लक्स जीरो, मतलब ये जीरो, इसका मतलब ये जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप थोड़ा सोचो इस पर, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। तो फाइनली हमने ये कंक्लूड कर दिया कि अगर शेल है तो शेल के अगर हम आउटसाइड मतलब आर बाहर ले रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा था? के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगा, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वाला टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्टेंस का। उसी तरह अगर हम सरफेस पे आ गए, मतलब ये शेल था, ये अगर हम बाहर बात किए, फिर हम सरफेस पे आ गए, आर पे आ गए, फिर हम अंदर आ गए, तो ये आउटसाइड, ये सरफेस, ये इनसाइड वाली बात है। तो ऑन द सरफेस आर इज इक्वल टू आर, सो यू रिप्लेस दिस आर बाई कैपिटल आर। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बिकॉज नेट चार्ज, यहाँ पर निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने गॉसियन सरफेस बनाया, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई भी चार्ज है नहीं, दैट इज चार्ज इज इक्वल टू जीरो। इफ चार्ज इज इक्वल टू जीरो मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मानते हैं? क्या प्रूफ हुआ था? इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो होता है। आपको सारा नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ बनाए, तो ये वेरिएबल कौन है? आर है। आर किस तरह से चेंज हो रहा है? जीरो से लेकर के, देखो ये सेंटर है, आर किस तरह से चेंज हो रहा था? आर चेंज हो रहा था, जीरो था, फिर कभी आर होता है, कभी ये स्मॉल आर होता है, तो आर वेरिएबल है। सो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला था? जीरो, मीन्स जीरो से लेकर के आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट आर। आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये छोटा है, मीन्स आर इज ग्रेटर देन आर है ना? देखो आप यहाँ पर, तो आर अगर ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़्यादा। और जैसे जैसे आर इंक्रीज करता जा रहा है, जैसे जैसे आर इंक्रीज करता जा रहा है, आर इंक्रीज करता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता जाएगा? डिक्रीज। इसलिए ये रिलेशन यहाँ पर है। और मैक्सिमम कहाँ पर है? दिस इज मैक्सिमम, दिस पॉइंट इज सरफेस। सरफेस का मतलब क्या लिखा हो? रेडियस। ये देखो, ये स्पेयर एक स्पेरिकल सेल है, तो ये क्या होगी? दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, तो रेडियस में क्या होगी? स्पेरिकल, मतलब मैक्सिमम होगी। सो दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ड्यू टू स्पेरिकल सेल, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेरिकल सेल। नेक्स्ट टॉपिक अभी करेंगे, आप इसको नोट करना तो कर लो, नहीं तो नोट्स आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। The last derivation, okay, on the basis of Gauss theorem, application of Gauss theorem, suppose we have to find electric field due to uniformly charged insulating sphere. मतलब ये insulator है and this is sphere and charge is distributed throughout uniformly inside and outside. मेटल में तो क्या होता है कि चार्ज देते हैं अंदर, वो भी सरफेस पे आ जाता है, बट इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दिस इंसुलेटिंग स्पेयर, ठीक है। एंड इफ आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्पेयर, देन वी नो द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्पेयर इज 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इफ कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्पेयर. Now we have to find electric field due to this insulating charged sphere at outside, at the surface and inside this insulating sphere. इससे पहले वाले डेरिवेशन में मैंने आपको बताया था कि इनसाइड मेटल शेल या शेल जो होता है, मेटल शेल समझो, उसके अंदर चार्ज जीरो होता है, लेकिन दिस इज नॉट मेटल शेल, दिस इज इंसुलेटर एंड चार्ज इनसाइड इट इज नॉट जीरो.
So we have to find electric field 3 places: outside, surface and inside. So very simple, let's see. Consider in examination 3 marks question will come. Okay, this is NCERT example also. Consider a insulating sphere. मैंने बहुत दिन से ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, कई बार आया भी है. कंसिडर अ इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R. ये एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, इसका रेडियस क्या दिख रहा है आपको, ये स्फीयर है, इसकी रेडियस R है. एंड नाउ वी हैव टू कंसिडर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मीन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दिस वॉल्यूम, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर. देखो आप यहाँ पर इसकी वॉल्यूम क्या होगी, ये स्फीयर जो आपको दिखाई दे रहा है. इफ R इज द रेडियस देन वॉल्यूम इज इक्वल टू 4, क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड. यहाँ पर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये था नहीं, हमने क्या किया, जहाँ भी निकालना वहाँ हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे. मीन्स वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. सो वी फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, है ना, ये जो इंसुलेटिंग स्फीयर है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस इंसुलेटिंग स्फीयर वी मेक वन रेडियस एंड वी ड्रॉ अ सर्कल. एंड ये सर्कल रेडियस लेकर के सब तरफ हम रोटेट करा देंगे, मतलब इस तरह से भी, इस तरह से भी, तो हमें एक क्या मिल जाएगा, स्फीयर मिल जाएगा, ठीक है. स्फीयर मिल गया तो ठीक है, स्फीयर मिला तो ये स्फीयर कैसा है, इसका नाम क्या दिया हमने, इसका नाम हमने दिया, इसको क्या कहेंगे, गॉसियन, है ना, गॉसियन सरफेस है. और ये किस शेप का है, गॉसियन सरफेस इज स्फेरिकल. दिस इज स्फेरिकल इन शेप. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड एट दिस पॉइंट. जिस पॉइंट पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है वहाँ पर आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है. तो इस पॉइंट पे निकालना है तो गॉसियन सरफेस ऐसे करके ऐसे बना. अब बताओ, इससे चार्ज है तो ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम दिस चार्ज ऑब्जेक्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल ओरिजिनेट इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज एरिया, या ये एरिया है ना. तो ये मान लो यहाँ से निकल रहा है, ये एरिया है, क्योंकि एरिया कैसा है, पूरा एक स्फीयर है, ये चार्ज बीच में है एक तरह से, ठीक है. ये क्या है, ये इंसुलेटिंग चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, स्फीयर है, इंसुलेटर है ये, लेकिन इसमें चार्ज भरा हुआ है खूब सारा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे बाहर निकला, ये वाली एरिया को टच किया, तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मिलकर के क्या बनाई, दोनों मिलकर के बनाई फ्लक्स. सो एरिया वेक्टर क्या होगा, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पे बाहर की तरफ. बोथ आर हैविंग सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई एंगल बिटवीन देम इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री. ठीक है, 0 डिग्री हो गया. तो अभी हम निकालेंगे, जैसे यहाँ पर आउटसाइड में, पहला हम केस कर रहे हैं आउटसाइड में, ठीक है. तो क्या होगा बताओ, आउटसाइड मतलब स्फेरिकल सेल ये है, हम आउटसाइड P पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं. सो हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गॉसियन फ्लक्स ड्यू टू गॉसियन सरफेस, GS मीन्स गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, थीटा बताए 0 होता है, E इंटू ए. अब एरिया किसका लोगे, ये इंपॉर्टेंट है. दिस एरिया इज गॉसियन एरिया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गॉसियन एरिया. इसमें कभी गलती मत करना, इसी में तुम गलती करते हो. गॉसियन एरिया, दिस इज गॉसियन सरफेस, फ्लक्स ड्यू टू गॉसियन सरफेस इज EA कॉस थीटा, क्योंकि गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना बना, गॉसियन सरफेस से फ्लक्स बना इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू गॉसियन एरिया. और गॉसियन एरिया क्या है, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस R है, तो ये एरिया कितना होगा, अगर रेडियस R है तो 4πr², स्मॉल r² होगा. कैपिटल R² तो इस सेल का है, मतलब सेल नहीं, इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर का है, ठीक है. तो यहाँ पर 4πr² लिखेंगे. और गॉस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, गॉस थ्योरम से जानते हैं ऑल्सो फ्रॉम गॉस थ्योरम, GT गॉस थ्योरम से फ्लक्स इज फॉर्म्ड, फ्लक्स इज इक्वल टू Q(in/ε0). दिस इज ऑल्सो फ्लक्स, दिस इज ऑल्सो फ्लक्स. फ्लक्स मतलब है ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, 1 = 2. तो E कितना निकलेगा, Q/4πr²ε0. यहाँ R क्या है, R है द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये R है, ठीक है, ये डिस्टेंस R है, यहाँ पर निकालना था. अब R जो है स्मॉल r, इट विल चेंज, इट कैन वेरी, इट इज़ वेरिएबल, स्मॉल r इज वेरिएबल. अब कम होते होते कहाँ आ गया, नाउ इट कम्स टू द सरफेस ऑफ दिस इंसुलेटिंग स्फीयर. R कम होते होते कहाँ तक आ चुका है, R कम होते होते यहाँ तक आ गया है, यहाँ पर आ गया. मीन्स R इज इक्वल टू व्हाट, नाउ R इज इक्वल टू कैपिटल R. तो बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला R की जगह में
नाउ ऑन द सरफेस, दिस इज आउटसाइड द सरफेस, दिस इज आउटसाइड द सरफेस, नाउ ऑन द सरफेस क्या होगा बताओ, ऑन द सरफेस ये फॉर्मूला चेंज होकर के बस सब कुछ सेम रखना, यहाँ आर स्क्वायर कर देना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, मतलब सरफेस गॉसियन सरफेस तो बनेगा ही नहीं, उसी के ऊपर है, तो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको इक्वेट करोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंदर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये मेटल सेल नहीं है। मेटल सेल रहता तो अंदर में तो एयर था और अंदर में कोई चार्ज नहीं रहता मेटल के अंदर, है ना, शील्डिंग इफेक्ट में हमने पढ़ा है ऐसा। तो total charge inside the conductor or shell is zero, that's why electric field is zero, but in this condition there must be a charge, क्योंकि ये इंसुलेटर है और इसके अंदर चार्ज पहले से है, तो वो चार्ज कैसे निकालेंगे ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप इसको अगर नोट करना तो कर लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में सारा नोट्स ऑर्गेनाइज वे में सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो देखो इसमें क्या है, अभी तुम देख सकते हो कि अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले तो बाहर निकाले, फिर सरफेस पे निकाले। अब हम ये जो स्पेयर था आपके पास, इस स्पेयर के अंदर आ गए। पहले बाहर था, फिर सरफेस पे आ गए। अब हम आर से कम होते होते, सरफेस से कम होते होते यहाँ आ गए। मीन्स अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊँ, आपको बताऊँ, देखो क्योंकि क्लियर होना चाहिए ये सारा चीज़, ठीक है। जैसे स्फेरिकल सेल कैसा होता है, ये है शेल नहीं है, ये चार्ज इंसुलेटिंग स्पेयर है। इसकी रेडियस क्या थी आर, आपने बाहर निकाला आर पे, आपने सरफेस पे निकाला। अब आप निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो इनसाइड कैसे निकालोगे, मतलब यहाँ निकालना चाहते हो। तो अभी रेडियस कहाँ क्या कम हो गया, अभी रेडियस हो गया तुम्हारा स्मॉल आर। तो इसके अंदर क्या बनाओगे, गॉसियन सरफेस। ये क्या बना है, देखो गोल मेरे से नहीं बना, आप एकदम परफेक्ट गोल बनाना। दिस इज गॉसियन सरफेस। तो अभी गॉसियन एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया होगा, है ना, 4 पाई, ये रेडियस आर है तो 4 पाई। अगर वॉल्यूम निकालोगे तो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है। ये होगा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको क्या निकालना है, देखो गॉसियन सरफेस से, क्योंकि अभी आप जब बाहर थे, अंदर थे, सरफेस पे थे, आप अंदर आए, तो जहाँ भी आप आते हो वहाँ पर आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो इसके अंदर, इससे पहले वाले कंडीशन में तो मेटल के अंदर कोई चार्ज नहीं था, अभी इसके अंदर चार्ज है, तो इसका चार्ज का नाम मैंने क्या रख दिया, Q डैश रख दिया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, फ्लक्स ड्यू टू गॉसियन सरफेस इज E.4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसके कारण क्योंकि ये चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E, और ये एक सरफेस गॉसियन सरफेस बना तो इसका भी एरिया वेक्टर बनेगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। आपको नोट्स प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो E.4 पाई आर स्क्वायर हुआ एक, इक्वेशन 1। दूसरा क्या जानते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम से, फ्लक्स इज इक्वल टू Qin बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये Qn क्या है, ये इनसाइड गॉसियन सरफेस, द चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। और आपने गॉसियन सरफेस कौन सा बनाया है, ये वाला गॉसियन सरफेस बनाया है, देखो ये वाला, ठीक है, ये बनाया है। ये शेल है, इंसुलेटिंग शेल है, आपको अंदर निकालना चाहिए। दिस इज द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो आप ये बनाए हो, इसमें क्या करना है, तो इसके अंदर चार्ज Q डैश है, तो Q डैश कैसे निकालेंगे, तो देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट टर्म होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसका भी कितना होगा, पूरे का भी उतना ही होगा रो, और थोड़े से का भी क्या होगा, रो होगा। तो रो इज इक्वल टू, इसके अंदर चार्ज क्या माना हूँ, इसके अंदर का चार्ज माना हूँ Q डैश। सो वी विल राइट Q डैश अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस, तो वॉल्यूम ये रेडियस है और ये रेडियस इतना छोटा है, तो ये रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। ये रेडियस क्या था, स्मॉल आर था, देखो यहाँ से यहाँ तक, है ना। एक बार फिर से मैं बना दे रहा हूँ ताकि ये एकदम बिल्कुल भी डाउट नहीं रहे तुम्हारे, ठीक है। देखो आपको ये इंसुलेटिंग क्या है, इंसुलेटिंग स्पेयर है, आपको बाहर नहीं निकालना, आपको सरफेस पे नहीं निकालना, आपको अंदर निकालना है। इस पर चार्ज पूरा हर जगह चार्ज है, हर जगह, ठीक है, आपको अंदर निकालना है। तो अंदर निकालोगे तो ये सेंटर था, यहाँ निकालना है, ठीक है। ये तो आर इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ स्पेयर है, तो यहाँ आप क्या ड्रॉ कर दिए, गॉसियन सरफेस, ठीक है। दिस इज गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है। और आपको इसका एरिया अगर लेना होगा तो क्या लोगे, 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा, ये आर है तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसके कारण जो, क्योंकि चार्ज इसके अंदर भी है, तो इसके कारण फ्लक्स क्या बनेगा, E × 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 1। और इसके अंदर चार्ज मैंने क्या माना, Q डैश,
क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी और पूरे चार्ज की, पूरे स्पेयर के भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट टर्म। यही फायदा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इतने का भी उतना ही होगा, पूरे का भी उतना होगा, थोड़े से का भी लोगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज व्हाट? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो इसके अंदर चार्ज कितना माना हूँ? क्यू डैश माना हूँ, तो क्यू डैश अपॉन वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? इसकी रेडियस है स्मॉल आर, तो वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज 4/3 पाई आर क्यू। ऐसे लिख देंगे। 3 ऊपर जाएगा, सॉल्व करेंगे, इधर उधर करेंगे, क्यू डैश निकल जाएगा। तो क्यू डैश किसके टर्म में निकला? रो के टर्म में। और रो का डेफिनेशन क्या होता है? रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। अगर पूरा शेल का निकालना चाहे तो पूरा वॉल्यूम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही वाला टर्म को है ना 4/3 पाई आर क्यू। तो हमने क्या किया, ये रो की जगह में ना क्या लिख दिया, ये रो की जगह यहाँ रो था, रो की वैल्यू क्या थी? क्यू बाई 4 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर रो की जगह में क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर टू द पावर 3 रख दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी चीज़ कट जाएंगे। 4 पाई 3 कैंसिल कट जाएगा, तो आर क्यू रह गया, स्मॉल आर क्यू कैपिटल आर क्यू। ऊपर में क्या रह गया? चार्ज। तो देखो यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, लेकिन यहाँ स्मॉल आर क्यू, यहाँ कैपिटल आर क्यू। तो हमने चार्ज निकाल दिया। तो अब क्या करना है, ये आपने ये निकाल रखा, उसके बाद बस फॉर्मूला में पुट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे ये तो निकाल लेना, आपको नोट्स में मिल जाएगा सारा, ठीक है। तो अभी देखो आपने क्यू का वैल्यू क्या निकाला बताओ? क्यू डैश की वैल्यू आपने निकाला है ना, यहाँ पर आप पुट कर दो, दैट इज फाई इज इक्वल टू क्यू डैश कितना निकला है? चार्ज के टर्म में आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। 1 और 2 को इक्वेट कर दो, ई डॉट 4 पाई है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया था, इसका एरिया था, गॉसियन सरफेस का एरिया था, गॉसियन सरफेस से निकाले थे। दिस इज इक्वल टू क्यू आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व करो, है ना। तो सॉल्व करोगे तो तुमको ई मिल जाएगा। तो ई क्या मिलेगा बताओ? कौन कौन चीज़ कट जाएगा? देखो यहाँ पर, ठीक है, आर स्क्वायर, आर कट गया, आर बचा, है ना, और कुछ कट रहा नहीं। तो आप क्या लिखोगे? क्यू आर अपॉन आर क्यू, ये नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ग्राफ बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे? पहले यहाँ तक देख लो आप। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का, ठीक है, कैसा? यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए, तो कुछ ग्राफ ऐसा मिलेगा। इस ग्राफ का मतलब क्या है? देखो, दिस इज ओरिजिन, मतलब ये स्फीयर है, ठीक है, ये ओरिजिन था। तो आप जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हो, आर की तरफ बढ़ रहे हो, यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है? 0। तो आर से, इस 0 से लेकर के आर तक बढ़ोगे, आप सरफेस तक आओगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर का। देख सकते हो हमने डिराइव भी किया था, ये कहाँ निकाला था? इनसाइड में। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। तो आर इंक्रीज करता गया, कितना आर मैक्सिमम बढ़ सकता है? आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो सकता है। तो कैपिटल आर में सरफेस पे क्या होगा? अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर है, इसमें हर जगह चार्ज है, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और इसकी वैल्यू हमने डिराइव करके बताया, सरफेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। और जैसे ही सरफेस से दूर जाते जाएंगे तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r स्क्वायर, ठीक है। ये सारा डेरिवेशन मैंने आपको कराया बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एक डेरिवेशन जो था इससे पहले वाले वीडियो में कराए थे, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज। अगर इसमें बहुत सारे चार्जेस है एक लाइन में, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस है, तो इसके कारण, इस कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट में क्या होगा? बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। ओके, चलो, थैंक यू।